नमस्ते स्टूडेंट्स। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम टू एवरीबॉडी। स्वागत है आपका आपके चैनल @फ्यूचर सेव एकेडमी में, जिसमें हम आज जेईई मेन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जो केमिकल कैनेटिक्स के चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट। तो चैप्टर नंबर 3, तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना आप, जिसमें हम क्वेश्चंस in the form of numericals or some experimental based questions करेंगे। तो let's start the first question. The first question is that एक आपको reactions दी हुई है, it is 2A plus B and products are C plus D, and the following reactions at 298 Kelvin, and this is the initial concentration given to you. Initial concentration, and then also initial concentration of B is given to you. Initial concentration and initial concentration B is given to you, and also there is a initial rate of formation. Initial rate of formation of C is given to you. So first case, initial concentration of A, it is 0.1 molar, then 1 molar, 0.1 molar. This is the concentration that you know already, and this is also concentration of B. It's a 0.1 molar, then 0.1 molar, it's again 0.1 molar. Initial rate of formation in all the cases are not same. First case 1.2 into 10 raised to the power minus 3, then 1.2 into 10 raised to the power minus 3, and the last is 2.4 into 10 raised to the power minus 3 is given. Question is the rate law formation of C we want to know. For rate law formation, first of all we will write the initial rate in the solution. Let's see, जल्दी से हम इसको करेंगे। इनिशियल रेट यू नो इट्स अ dc upon dt, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर टाइम, एंड इट इज इक्वल टू k रिएक्शन रेट कांस्टेंट, concentration of A its power x and concentration of B its power is y. So we want to calculate x and y for the rate of reactions dc over dt. First write this one, it's a 1.2 into 10 raised to the power minus 3, and concentration of A, it is given to you in the form of a 0.1 raised to the power x, and concentration of B in the initial, it is 0.1 raised to the power y. This is question number 1. And now the second practical about the initial rate, it is a 1.2 into 10 raised to the power minus 3. So write this same value, and K concentration for the initial A concentration is 0.1 raised to the power x, and also next is 0.1 raised to the power, second is 0. It's a 0.2 actually, 0.2 raised to the power y. So divide these two. Okay, so divide 2 by 1. So we will divide 2 by 1. So this cancel, k cancel, 0.1 raised to the power x, 0.1 raised to the power cancel, and here left is 0.2 raised to the power y over 0.1 raised to the power y is equal to, when these cancel, students, what will come? Yes, it is a 1. Now it's a 2 raised to the power y is equal to 1. We can write 2 raised to the power 0 because some number is power 0 is 1, and this implies y is equal to, you can calculate 0. So y is 0, and then also write the another rate of equation, third experiment. It's a 2.4 into 10 raised to the power minus 3, which is equal to then k 0.2 raised to the power x, and these values are little bit changed now. 0.2, it is 0.2 here actually. By mistake I have written the value 0.1. It's a 0.2 raised to the power x, 0.1 raised to the power y. So this is the question number third. Similarly, when we divide third by 1, we can get the value of x, and x value is supposed to be calculated is 1. So y is 0 and x is 1. So how we can write rate? Now rate, student, we can write rate is equal to k. This is the rate, A concentration, its power is x is 1.
y, b raised to power y is 0, तो b raised to power 0 is 1. तो what is rate? Rate is equal to k into a. This is the formula regarding the rate. dc upon dt is equal to k into a. So this is the right option, that k into concentration of a, it is equal to dc upon dt. Then see the next numerical. JEE mains exams numerical very important are there. Let's see. And then yes, the next question. The higher order reactions. Next question for the JEE main exam for the chapter number 3 chemical kinetics. See the video at the last, student. So chapter number 2 higher order and higher order greater than 3 reactions are rare. These are reactions very rare. Rare means कम होती हैं due to there are 4 options to given to you. Shifting of equilibrium. First is shifting of equilibrium. Yes, shifting of equilibrium towards reactants. Due to the elastic collision. Elastic collision क्या होते हैं? जहां पर आपकी kinetic energy और momentum कंजर्व रहता है. Shifting of collision, loss of active species on collision. ये रेयर होंगी जिसका ऑर्डर 3 से ग्रेटर होगा. और तीसरा है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस इकट्ठे इस कोलिजन हो जाएंगे. साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल रेक्टिंग मॉलिक्यूल्स. एंड जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो देखना है हमने कि ये तो नहीं है, डी. वहां पर इंक्रीज इन एंट्रोपी यू नो, increase in entropy. The measurement of disorder is called entropy. Increase in entropy and activation energy. So see its answer. So you know for the 21st is C. लो प्रोबेबिलिटी होने के कारण जो साइमल्टेनियस कोलिजन होंगे, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी ही लो है, मतलब वो कम स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक करने के कम कारण होने के कारण वो रिएक्शंस ही उनकी ऑर्डर 3 से ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो सी इज द राइट आंसर, बिकॉज लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली कोलिजन ऑफ ऑल एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इसकी संभावना कम है, तो लो प्रोबेबिलिटी का इसका आंसर आ जाएगा. आगे देखिए आप क्वेश्चन. केमिकल किनेटिक्स के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको जरा ध्यान से समझना आपने. आगे है आपका क्वेश्चन. डीकंपोजिशन हुई है यहां पर, डीकंपोजिशन किसकी? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, और वो फॉलो कर रही है फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 50 मिनट्स में. इन 50 मिनट्स स्टूडेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. 50 मिनट्स द concentration of H2O2 and the concentration of H2O2 decreases. It's decrease from which value to which value? 0.5 to 0.125 मोलर डिक्रीज कर गई. In such decomposition, when concentration reaches, जब concentration यहां पर पहुंच जाएगी H2O की 0.05 और डिक्रीज कर जाएगी, 0.05 मोलर के तक पहुंच जाएगी, देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, आपने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है. तो आपके लिए 4 ऑप्शंस है, वेरी इंटरेस्टिंग है, अच्छी तरह से लास्ट तक देखना आपने. तो यहां पर के आपका जो सोल्यूशन मैं बताऊंगा
आपको पता है रिएक्शन रेट कांस्टेंट का रिजल्ट होता है, वो होता है 2.303/T log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन R0 ओवर R। समटाइम्स हम R0 मेंशन कर देते हैं और C0 भी मेंशन कर देते हैं और A0 भी मेंशन कर देते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पर आ गया आपका 2.303 स्टूडेंट, ऐसे ही आ गया। T आपका टाइम है, यहाँ पर 50 मिनट्स लग गया। लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, स्टार्टिंग में कितनी थी कंसंट्रेशन आपकी 0.5, तो बाकी जब डिकम्पोजिशन होगी तो कितनी बच गई 0.125। इसको सॉल्व करना है लॉग को, लॉग की वैल्यू को सॉल्व करके जो k की वैल्यू आएगी आपकी वो बन गई 0.0277 पर मिनट। रिएक्शन रेट कांस्टेंट आपका इतना आ गया। अब आपकी कंसंट्रेशन H2O की 2 की दी है, कौन सी कंसंट्रेशन है आपको, जब कंसंट्रेशन उनकी रहेगी 0.05 मोलर रिड्यूस होकर इतनी रहेगी, वहां पर जो रेट है आपका, तो रेट क्या होगा, रेट होगा K कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। तो K की वैल्यू कितनी है वो आपको मालूम होगी है 0.0277 और H2O2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर कितनी बच गई है 0.05। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो and after calculation the answer is 1.385 into 10 raised to power minus 3 maybe it's a mole per liter per minute. This is the rate. Now according to rate reaction है क्या, rate reaction हमारी है H2O2, when it decomposed it formed the 2 molecules of water plus half molecules of oxygen, because we want to calculate the oxygen formation, and for this concentration of oxygen over dt, it is equal to how much, it's because half molecules of oxygen there, so 1/2 multiplied by rate of reaction. So what is rate of reaction, rate of reactions of this is given to you, which is equal to 1.385 into 10 raised to power minus 3। तो 1.385 स्टूडेंट इसको डिवाइड कर लो आप, ये आ जाएगा आपका 6.93, जितना भी सॉल्व करके आपका आ गया 10 raised to power minus 4, and this is the rate in the form of a mole per liter per minute। सो इसके जो 4 ऑप्शन जो भी होंगे उसमें से ये आंसर आपने लगाना है। तो पहले आपने K रिएक्शन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद आपको लॉग में थोड़ा सा बता भी देता हूँ, 0.5 को 0.125 के कैसे सॉल्व करना है। ये बन गया log 5, दिस इज अ 5/10, एंड 0.125 वी कैन राइट 125/1000, राइट। तो दिस इज log 5/10, एंड नाउ 1000 आपका ऊपर लग गया, ओवर 125 नीचे, 1000 की ये 0 कैंसिल हो गई, 5 के साथ 125 कैंसिल हो गया 25, ये 25 के साथ 100 कैंसिल हो गया 25 for the 100, 4 ओवर या log 4 बन जाएगा। log 4 को हम क्या करेंगे, 40 का जीरो में से लॉग टेबल देख लेंगे, जो 40 का जीरो में के वैल्यू होगी उसको सॉल्व करके जितना आ गया 2.303 और 50 के साथ डिवाइड करके उसका आंसर हमने ले आना है। तो आगे आपके जो ये क्वेश्चंस हैं जरूर आपने लास्ट तक वीडियो को देखना, और जो स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अपना जो चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लास्ट तक आपने जब तक वीडियो देखोगे आप तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो जेईई का मेन का क्वेश्चन है, वो है द टू रिएक्शंस R1 एंड R2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीज आर आल्सो। टू रिएक्शंस, दो रिएक्शंस हैं, एक तो R1 है और दूसरी है R2। यहां पर आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स हैं उनके, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है। प्री एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल्स होते हैं e की पावर वाले, और प्री होता है जो पहले होते हैं उनसे, e की पावर के पहले क्वेश्चन होते हैं वो सेम है। एंड एक्टिवेशन एनर्जी R1 की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी में से E ऐसे लिख देता हूं, एक्टिवेशन R1 की एक्सीड करती है R2 के बाय 10, मतलब R2 से एक्टिवेशन एनर्जी वो है 1 की वो 10 पावर ज्यादा है। K1 और K2 वो रेट कांस्टेंट है, K1 और K2 आपके रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन समझ लगेगा आपको एट 300 केल्विन पेपर। एंड देन यू हैव टू बी कैलकुलेट स्टूडेंट्स ln ऑफ natural log of K2 over K1, and this is to, now we want to calculate R is given to you, that is a real gas constant, it's a 8.314 joule per mole
per Kelvin. This is now see it's how we can solve. एक्टिवेशन एनर्जी आपको मालूम है, एक्टिवेशन एनर्जी आपने कैसे सॉल्व की थी ये आपको पता है, हमने रिलेशन उसका वही लिखना है जो पहले लिखा था। तो ये आपका रिलेशन था के का, आपको मालूम है ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, दिस इज द रिलेशन। नाउ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फर्स्ट रिएक्शन A1 and K A is a constant, A is a pre-exponential factor which is same, ये सेम दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में, तो ये सेम है। और K कांस्टेंट आपका कितना है K1, तो ये आपका सेम हो गया। और दूसरा है आपके लिए K2, वो बन गया A e रेज़ टू पावर माइनस EA2 ओवर RT। टेम्परेचर सेम, आर रियल गैस कांस्टेंट सेम। अब आपने K2 अपॉन K1 की नेचुरल लॉगरिथम कैलकुलेट करना है ना, तो आपके लिए K2 ओवर K1 को डिवाइड कर दो, K2 ओवर K1, तो इसकी वैल्यू ये वैल्यू होगी इसकी EA2 अपॉन आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बन गई R2 और ओवर हो गया इसके A e रेज़ टू पावर माइनस A1 RT, ये बन गया। ये देखो आप A कैंसिल हो गया और यहां पर आपकी जो E की रेज़ टू पावर माइनस AE है, ये सॉल्व होके आपका बन गया माइनस EA2 के साथ ऊपर टर्म साइन का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का साइन ऊपर जाकर आपका प्लस बन जाएगा EA1 और आपका ओवर क्या बन जाएगा RT, ये है रिलेशन। अब थोड़ा सा इसको RT कॉमन, आपका कॉमन आ गया, ठीक है कॉमन है। अब इसको K2 ओवर K1 आप ऐसे लगा दो, K2 ओवर K1, ये आपका बन गया E की पावर EA1 आप आगे ले आओ, EA1 माइनस EA2 पीछे कर दो, प्लस टर्म आगे कर दी, माइनस की पीछे कर दी, ओवर RT, ये रिलेशन बन गया। अब इसके लिए आपने लॉग ले लेना है ln ऑफ K2 ओवर K1, तो इसका जब आप लॉग लोगे तो ये बन गया ln ऑफ E रेज़ टू पावर EA1 माइनस EA2 ओवर RT। तो आपको मालूम है कि ये जो पावर होती है ना E के ऊपर, किसी की लॉग की पावर वो आगे आ जाती है, जब ये पावर आ गया तो ये बच जाएगा ln ऑफ E, और ln ऑफ E क्या होता है, ln ऑफ E होता है 1, तो ये रिलेशन आपका इतने बच गया, आपका बन गया आगे पावर आ गई EA1 माइनस EA2 ओवर RT। अब इसकी वैल्यू मैंने फिल कर देनी है, यहां पर आपको दिखा रहा हूं मैं, देख लो आप प्लीज अच्छी तरह से इसकी वैल्यू। हाँ जी, ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखो आप EA, ये बच गया आपका EA1 माइनस EA2 ओवर RT, ये रिलेशन आपका आ गया लास्ट में। और द वैल्यू ऑफ दिस, द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एंड द सेकंड इज हाउ मच, 10, सो इट इज 10 अपॉन RT। R, how much R is? R is a real gas constant. This is given to you in the statement. It's a 8.314. That is R 8.314, and temperature in the statement is given, that is equal to how much? It's a 300. This, and activation energy in the form of a 10 raised to power 3. This is 10 raised to power 3. तो इसको आपने सॉल्व करना है, ये बन जाएगा आपका ln ऑफ K2 ओवर K1। तो इसको सॉल्व करके जितना आंसर आएगा, आई विल राइटिंग दैट आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए ओनली 4 फैक्टर। सो ln ऑफ K2 ओवर K1 इज इक्वल टू 4। दिस इज द मेन न्यूमेरिकल्स दैट्स may be expected to be in the main exam of this 2026 year, and also possibility in the 2027. And after that, the question is, see the question. And which graph is given to you, very interesting, that's a graph. This graph is given to you for the question, next question, and this is the graph. There is a, you can say 1 over T, temperature का रेसिप्रोकल है केल्विन में, and there is a ln of K.
natural logarithm of k, and these are the lines for the reactions A. This is for the A and this is for the B, student, and now this is for the C and this is for the D. There is the origin possibility, not a possibility but exact 0 origin is there. लास्ट तक वीडियो को लास्ट तक देखना, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अपना समझ के आपका स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये लाइंस करेक्टली क्या शो कर रही हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर डिपेंडेंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हमने देखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे शो हो रहा है। आपको यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए आपको एनर्जी एंट्रोपी लिखनी पड़ेगी, तो आपको डेल्टा जी का रिलेशन आप लिख लो स्टूडेंट, समझ लेना, मतलब आप डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का रिलेशन होगा ये आपका डेल्टा जी का, और साथ ही साथ जो आपकी डेल्टा जी होती है चेंज इन एंट्रोपी वो होती है माइनस आर टी इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ के विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, सेम रह गया, ठीक है ना। और इसके बाद जो आपका एल एन ऑफ के आपने कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या किया, माइनस आर टी के साथ डिवाइड कर दिया, इस सारी क्वेश्चंस को दोनों साइड पे माइनस आर टी के साथ डिवाइड कर दिया, ये बन गया माइनस एच ओवर आर टी, और यहाँ पर आर टी के साथ जो डिवाइड करूंगा टी टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एस के ओवर आर लग जाएगा, ये रिलेशन बन गया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, ये एल एन ऑफ के हो गया, ये इधर आ गया एल एन ऑफ के, और दूसरा आ गया 1/t, ये दोनों का ग्राफ हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन का, जिसका स्लोप क्या होगा, स्लोप आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, जो स्लोप होगा वो होगा माइनस डेल्टा एच ओवर आर। ये कैसे पता लगा, जैसे हम मैथ्स में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशंस कैलकुलेट करते हैं, x और y का ग्राफ होता है, यहाँ पर x एक्सिस होती है और y का ग्राफ ये होता है, तो m होता है स्लोप, स्लोप इज दिस इज m, slope is minus h upon r, this is the slope minus h upon r, so slope is minus h upon r because delta h is negative. Now student delta h क्या है, नेगेटिव है, आपको मालूम है डेल्टा एच नेगेटिव है, होता है हमेशा, तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है उसका स्लोप क्या बन गया फिर पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या बन गया, स्लोप आपका पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव बन गया तो कौन कौन सी स्लोप पॉजिटिव है वो लाइंस आपको इजी दिख रही हैं, ये दो लाइंस हैं ए वाली और बी वाली जो पॉजिटिव पार्ट में जा रही है, तो ए एंड बी आर द राइट सॉल्यूशन फॉर द पॉजिटिव वन। इसके बाद आगे देखो आप स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आपके समझने बहुत जरूरी हैं। कभी क्वेश्चंस किसी फॉर्म में आ जाता है एग्जाम में, कभी किसी फॉर्म में आ सकता है, तो ग्राफ वाले सम भी बहुत इजी होते हैं, तो आपने अच्छी तरह से समझने हैं। आगे देखना है, आप आगे देखो, ये क्वेश्चन जो आपके लिए आया है यहाँ पर, डीकम्पोजिशन एक्स की है आपके लिए, डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन एक्स, एक्स मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस हो सकता है कंपाउंड, उसकी डीकम्पोजिशन रेट कांस्टेंट उसका दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट के है, उसके लिए वैल्यू वो है 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर, ये दी हुई है स्टेटमेंट। और उसके बाद क्या है, हाउ मैनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड, कितने साल लगेंगे, टाइम कैलकुलेट करना है आपने, हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑफ 5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स, जब 0.5 माइक्रोग्राम, ये 5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स कितने में रह जाएगा, जब उसकी वैल्यू इतनी रह जाएगी 2.5 माइक्रोग्राम, ये वैल्यू रह जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखना है हमने, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इंडिकेट, जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है यहां पर देखेंगे आप, यहां पर इंडिकेट कर रहा है यूनिट, ईयर इनवर्स है ना, ईयर इनवर्स का मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, it is a zero order reaction because year
It does not depend upon the rate of concentration of reactants. It depends only on the year. Year means the reaction is a zero order reactions. And now for the zero order reaction, concentration of X is equal to initial concentration X naught minus KT. This is the relation for the zero order reactions. So from there we calculate value of T. तो T will be equal to X माइनस एक्स नॉट. ये एक्स नॉट आपकी लेफ्ट साइड पे हो गया और आपका जो एक्स की वैल्यू है, सॉरी ये माइनस के टी इधर आ गया, ये एक्स नॉट के वैल्यू आप एक्स माइनस कर दोगे और डिवाइडेड बाय होगा के. तो ये उसके बाद एक्स नॉट की इनिशियल जो कंसंट्रेशन है ना वो कितनी थी, स्टार्टिंग में 5 थी, तो वो 5 है. एक्स रह कितनी गई, 5 में से 2.5 माइनस कर दो और के आपका कितना है 0.05. तो इसको सॉल्व कर लेना स्टूडेंट. तो ये आ गया आपका 5 में से 2.5 ओवर 0.05. आफ्टर सॉल्विंग 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5, इट विल बी 50 years इट विल टेक व्हेन 5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स इनटू लेफ्ट. तो आज के लिए स्टूडेंट्स आपके मेन एग्जाम के लिए केमिकल किनेटिक्स वाले चैप्टर इतने थे. जरूर अच्छी तरह से फॉलो करना अपना चैनल और लास्ट तक वीडियो को हर बार देखना. फिर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे कल केमिकल किनेटिक्स के लिए. तो तब तक के लिए एंजॉय द डे, हैव ए नाइस डे, टेक केयर.